Welcome to MT Learnings, एक प्रभावी पहल. Friends, students, and all the professionals. Today we are going to discuss our second ideologies, liberalism. In the first ideologies, we have discussed conservatism, aparivartanwad. I request all the learners please visit our channel and watch the previous series, conservatism. Today we discuss liberalism, udarwad. Let's see the topic of liberalism. इन द लिबरलिज्म द इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी जो मुख्य विचार हमें पढ़ने हैं. द फर्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ अ लिबरलिज्म. हाउ द लिबरल आइडियोलॉजी डेवलप इन द वेस्टर्न एंड लेटर इन द ईस्टर्न एरिया. किस प्रकार से पश्चिमी देशों में और उसके बाद जो है ईस्टर्न कंट्रीज में ये ग्रेजुअली डेवलप हुई. सेकेंड पॉइंट इज दैट द प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल. लिसन आवर स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिबरल आइडियोलॉजी. जो व्यक्ति है, व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी की पूरी जो उदारवाद की विचारधारा है ये व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमती है. यानी कि इंडिविजुअल इज अ सेंटर पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल आइडियोलॉजी, और कैन वी से दैट लिबरलिज्म. In the third section, we discuss the classical liberalism and modern liberalism. My dear students, classical liberalism is the early liberalism where the idea is a very much different. And in the context of a modern liberalism, the liberalism has itself changed in a multiple areas. तो जो उदारवादी विचारधारा है उसके दो परिणाम हैं, दो हम परिवर्तनवाद कह सकते हैं कि एक पुरानी विचारधारा जिसमें जो है पुराने विचार रहे हैं, और नई विचारधारा जिसके अंदर नए विचारक आए हैं और उन्होंने अपना योगदान इसमें दिया है. हम इसको एक एक करके समझेंगे. इन द फिफ्थ सेक्शन, लिबरलिज्म, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी. In that section, we will discuss how the liberalism relate with the government and in the democratic function. Liberalism is the core idea of a democracy, or can we say that democracy can sustain only in the liberal context. तो लोकतंत्र है वो उदारवाद के आधार पर ही चल रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र की बुनियाद है वो उदारवाद पर ही टिकी हुई है. तो इसी दृष्टि से उदारवाद को समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है. Liberalism in the 21st century. In the 21st century, as we know that there are different ideologies who are also sustaining as along with the liberalism. So, in this context, what is the condition of a liberalism in the 21st century, and which kind of new ideas are coming in the liberalism? So, we will discuss at these topics one by one. So, let's start our new topic, liberalism, and part 1. Now, let's come on the development of a liberalism. उदारवाद किस प्रकार से विकसित हुआ. देखिए, the term liberal has been in the use since in the 14th century, but has had a wide variety of a meaning. So liberal, the meaning of liberal, or the term of a liberal has been interpreted differently at the different point. As we know that in the political science, राजनीतिक विज्ञान के अंदर कई सारे शब्दों का जो मतलब होता है वो समय के अनुसार बदलता रहता है. तो the interpretation of the word can be changed, or it's a interchangeable. So the liberal word is defined in a different terms, and in the 14th century it was defined with the free man. The word is a free man, यानी कि एक मुक्त व्यक्ति है, यानी कि व्यक्ति के ऊपर, आदमी के ऊपर किसी भी प्रकार को कोई बंधन नहीं है. इसी के साथ ही लिबरल टर्म को जोड़ करके देखा गया. बट इन द 18th century, in the 19th century, the word liberalism has denoted with the political idea. उसके बाद आते आते क्या हुआ कि ये एक राजनीतिक विचार बन गया. The liberal idea resulted from the breakdown of a feudalism in a Europe. So as we know that in the history of a Europe, feudalism was a prevailing. फ्यूडलिज्म क्या होता है, हिंदी में इसको सामंतवाद कहते हैं. सामंतवाद का मतलब ये हो गया कि जो यूरोप के इतिहास के अंदर जो जमीन थी वो सामंतों के कब्जे में थी, जो राजा के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे. ठीक है, जो राजाओं के द्वारा एक तरीके से उनका संबंध होता था. तो ये एक यूरोपियन हिस्ट्री हो गई. ठीक है, और जैसे ही फ्यूडलिज्म खत्म हुआ और उसके बाद जो नई सोसाइटी बन करके आई उसको लिबरल सोसाइटी या मार्केट बेस्ड सोसाइटी कहा गया. In the context of a 16th and 17th century, so during that century, American Revolution, French Revolution were very much prevailing at that point of time. In that period, the distinctive liberals and liberals were also there. बट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, उस समय के दौरान क्या होता था कि जो लिबरल्स थे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था. ठीक है, उनको जो है आप लेफ्टिस्ट कह लीजिए या फिर आप उनको सुधारवादी रिफॉर्मर के रूप में डाल लीजिए. कई प्रकार से जो है वो लोग वहां मौजूद थे. एंड बेसिकली लिबरल वाज द एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज अपोजिशन. वो एक अपोजिशन के रूप में काम कर रहे थे, जो सत्ता को चुनौती दे रहा था, जो राजा के शासन को चुनौती दे रहा था. एंड सपोजली बेस्ड अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ अ किंग. जो राजा का, तो देवीय राजा की शक्ति थी, जो राजा था उसको जो है लिबरलिज्म चुनौती दे रहा था. इन द 19th century, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज आल्सो प्रिवेलिंग इन द ब्रिटेन.
So as we know that the industrialization, it is a particular process where the machinization or a machinery production becomes a very much prevailed, become a very much popular in that time of period. जो लिबरल लोग थे, लिबरलिज्म ने कहा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इसमें गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर को ना करे, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये जो है सरकार से पूरे तरीके से मुक्त होना चाहिए। तो यहां पर भी लिबरलिज्म का इंटरप्रिटेशन अलग हो गया। अर्ली फेज में लिबरलिज्म को क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, वहां पर उसको फ्री मैन कहा जा रहा है। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान क्या कहा जा रहा है कि जो मार्केट हो गई है, जो इकोनॉमी बन रही है, उस इकोनॉमी को फ्री कर दिया जाए गवर्नमेंट से। सो लिबरलिज्म डिफाइंड इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट। इन द 20th सेंचुरी लिबरलिज्म धीरे धीरे और ज्यादा फेमस होता है और ज्यादा आगे बढ़ता है, एंड ग्रेजुअली आफ्टर द 1950s इट is become the part of Asian and Latin American African societies. But basically the liberalism was not very much famous as compared which was it was a famous in the यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज। तो जितना वो पश्चिमी देशों में फेमस हुआ उतना वो एशियन और अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में नहीं हुआ। वहां पर लिबरलिज्म को एक वेस्टर्न टर्म के रूप में ही देखा गया, और सोशलिज्म और नेशनलिज्म की जो विचारधाराएं हैं, वो जो आइडियोलॉजी है, वो एशिया और अफ्रीका में बहुत ज्यादा फेमस हुई है। Political system has also shaped by the liberal ideas and values. So we all know that in the Western countries, the constitutional democracy were very much there. और वो जो विचारधाराएं हैं, वो सभी विचारधाराएं जितनी भी वहां वेस्टर्न में कंट्रीज में पाई जाती है, उन सभी विचारधाराओं में लिबरल विचारधारा का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको आकार देने में, उसको शेप देने में। ठीक है, यहां तक आप जो है समझ रहे हैं। डेवलपिंग फर्स्ट इन वेस्टर्न यूरोप एंड इन नॉर्थ अमेरिका। तो पहले यूरोप में हुआ, फिर नॉर्थ अमेरिका में हुआ, फिर धीरे धीरे करके एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में आया, और 1991 तक आते आते सभी देशों ने, दुनिया के अधिकांश देशों ने जो है लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो कर लिया। अपनी इकोनॉमिक फेज में तो कर ही लिया, पॉलिटिकल फेज में उन्होंने कहीं नहीं किया, लेकिन इकोनॉमी में तो लिबरलिज्म विचारधारा को फॉलो कर ही लिया। इससे पहले जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी थी, the socialistic ideology very much found in the Eastern European countries, and as we know that the history of the world politics, so USSR was found in that time तो USSR की मौजूदगी भी वहां रही है। तो इसी संदर्भ में जो है पूरी की पूरी विचारधारा को और उस दौर की राजनीति को भी आप समझिए। The character of a liberalism changed as the rising of a middle class. So after the 1970s or 80s, new middle class has been emerged. And that time the new middle class has very much focused on the radical sense of liberalism. तो उस दौर में जो मध्यम वर्ग उभर के सामने आया, उसने उदारवाद को एक नई विचार के रूप में प्रकट किया, जिसको क्रांतिकारी कह सकते हैं या उग्र कह सकते हैं, कुछ संदर्भ में इसको कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, रेडिकल और कैन वी से दैट द रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबरलिज्म हैज स्ट्रेस्ड ओवर द रिफॉर्म्स। उन्होंने किस चीज पर जोर दिया, रिफॉर्म्स पर जोर दिया। And they stressed over the change, reforms in a political institution, in the culture and all around where the conservative ideas remain. जहां पर भी संकीर्ण विचारधाराएं थी रही हैं, उन सब की रिफॉर्म्स की बात करना उन्होंने शुरू कर दिया। किन्होंने शुरू कर दिया, न्यू मिडिल क्लास ने। Early liberals had wanted to interfere as much as the very little in the citizen's life. In a modern liberals came to believe that the government should be responsible for delivering the welfare service such as the health, housing or a pension and education. So there are two type of liberalism are found currently. दो प्रकार के जो है उदारवाद पाए जा रहे हैं आज की डेट में। अर्ली लिबरल्स क्या कह रहे थे स्टूडेंट, अर्ली लिबरल्स ये कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बट मॉडर्न लिबरल्स क्या कह रहे हैं, मॉडर्न लिबरल्स ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको आगे आना चाहिए और हेल्थ इश्यूज को और एजुकेशन को, पेंशन को, हाउसिंग फैसिलिटीज को, इन सभी फैसिलिटीज को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो देयर आर टू कंप्लीटली अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया इन द लिबरलिज्म। सो दिस इज द जर्नी ऑफ अ लिबरलिज्म, जो हम उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। आइए आगे सब चलते हैं। द प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल। देखिए लिबरलिज्म का जो कोर आइडिया है वो क्या है, इंडिविजुअल है, यानी कि व्यक्तिवाद है। पूरी की पूरी जो विचारधारा है उदारवाद की, लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति पर आकर के टिक जाती है। तो व्हाट इज द इंडिविजुअल और लिबरलिज्म? लिबरलिज्म आल्सो नोन एज द इंडिविजुअलिज्म,
Okay, individualism and liberalism are not a very much difference from each other. So now let's focus on the meaning of individualism and the value system in the liberal ideas. So basically, the liberal ideas has a derived its a completely understanding from the Enlightenment period, or can we say that the Enlightenment belief? So, my dear student and our listeners, so what is the Enlightenment? Enlightenment period was the basically a reform period in the 18 in the 15th century of a Europe, or can we say that it was a completely a reformist period in the religious, in the science, and all the prevailing subjects at that point of time. So after that, the liberalism has generated a particular belief, or can we say that particular value system. On the basis of that, the liberalism ideas sustain, जिसके आधार पर जो है, जो उदारवाद की विचारधारा है वो टिकी होती है, वो सस्टेन करती है. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज दैट इंडिविजुअल, तो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने पढ़ा है. द सुप्रीम इंपोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल ओवर एनी सोशल ग्रुप एंड कलेक्टिव बॉडी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति है उसी को ही महत्वता दी जाएगी, उसके अलावा किसी भी अन्य वस्तु को, समाज को, कलेक्टिव बॉडी को, किसी भी प्रकार के गठबंधन को, सामाजिक बंधन को महत्वता नहीं दी जाएगी. महत्वता किसकी रहेगी? व्यक्ति की रहेगी. व्यक्ति के लिए ही सब कुछ है, यह मान करके आप विचारधारा को समझिए, यानी कि एवरीथिंग ओनली फॉर द इंडिविजुअल. सेकेंड पॉइंट है फ्रीडम. देखिए, फ्रीडम बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू स्ट्रेस ओवर द इंडिविजुअल, so without the freedom, individual cannot develop their skills and talents. So the freedom is a necessary for the sustainability of the individual. So now let's come to understand of a liberty and a freedom. They are interchangeable from each other. ये दोनों एक समान ही माने जाते हैं. लिबर्टी वॉज अ नेचुरल राइट एंड एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लीडिंग अ ट्रूली ह्यूमन एग्जिस्टेंस. तो व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए स्वतंत्रता अनिवार्य है. और इसी संदर्भ में कई विचारकों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिसमें जेएस मिल की जो बुक है ऑन लिबर्टी, उसमें उन्होंने इसको डिस्कस किया है. इसके अलावा जो उनकी बुक है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, उन्होंने भी डिस्कस किया है. सब्जुगेशन ऑफ वुमेन में भी डिस्कस किया है. आइए इसको समझते हैं. स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, द ह्यूमन एक्शन कैन बी कैटेगराइज इन अ टू पार्ट. व्यक्ति के कार्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन. सो अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, self regarding action is that action where the individual can perform their action and it affect only the individual itself. In that action, state should not be interfere. According to J.S. Mill, this is the pure sense of liberty, where the state cannot interfere in the individual's action. But other regarding action is a different action where the individual affects others or a society. व्यक्ति जो है इस कार्य के अंदर समाज को और अन्य को आहत करता है, नुकसान पहुंचा सकता है. इफ द इंडिविजुअल हार्म्स अदर और सोसाइटी, एट दैट टाइम स्टेट कैन बी अलाउड टू इंटरफेयर इन द इंडिविजुअल फ्रीडम, बट ओनली टू जस्ट रिफॉर्म्स और डू जस्टिस. सो इस परिस्थिति के अंदर राज्य इंटरफेयर कर सकता है, बट इन द सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन स्टेट not to be allowed in the interfere of the individual liberty. So according to the J.S. Mill, self-regarding action is a pure sense of liberty or of freedom, and it should be prevailed, it should be happen. But in the context of a modern, Isai Berlin is a second thinker who has a focus on the two concepts of liberty in his book. He has argued the concept of liberty in a two-part, negative and positive liberty. And Isai Berlin, negative liberty is not a good thing, because in the negative sense of liberty, a person or an individual can be left alone. नेगेटिव और नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाता है, और अकेले की परिस्थिति के अंदर जो व्यक्ति है, अ पर्सन और इंडिविजुअल कैन नॉट डेवलप देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स, एंड इट इज अ नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल्स टू डेवलप देयर स्किल, टैलेंट एंड नॉलेज टू परफॉर्म देयर एक्शंस मोर जेन्युइनली. तो व्यक्ति को जो है अपने एक्शंस को और अच्छे से करने के लिए अपनी योग्यताओं को बढ़ाना जरूरी है. एंड पर्संस कैन ओनली टू डेवलप देयर स्किल एंड टैलेंट्स इफ दे फॉलो और बिलीव इन अ पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी, वेयर ही रिक्वायर्स द स्टेट, वेयर ही रिक्वायर द सोसाइटी, वेयर ही कैन बी बिकम अ मोर autonomous over himself or herself.
व्यक्ति जो है अपने आप पर पूरी तरीके से स्वायत्त हो जाए, अपना मालिक हो जाए, और वो तभी हो सकता है जब उसके गुणों का विकास होगा, और वो तभी हो सकता है जब वो पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी में बिलीव करेगा और उसको सोसाइटी और स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है। तो प्यारे दोस्तों, हमने जो है अर्ली कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जेएस मिल के द्वारा दिया गया, हमने उसको समझा, एंड लेटर वी हैव डिस्कस द आई बर्लिन आइडिया ऑफ जस्टिस। नाउ लेट्स कम द आइडिया ऑफ रीजन. Reason is a second value system of the liberalism. As we know that the idea of a liberalism is derived from the early 14th century, and early 14th and 15th centuries also was the period of enlightenment project. What was the enlightenment project? Enlightenment was basically a reformist movement that was happened in the Europe during the period of 14th and 15th century, and we can also trace them after that. But द रीजन इज अ कोर पार्ट ऑफ द एनलाइटनमेंट पीरियड. उसको प्रबोधन काल भी कहा जाता है, उसको जो है सुधारवाद भी कहा जाता है, और तार्किकता उस दौर की प्रमुख पहचान रही है जहां पर अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस और इग्नोरेंस को नकारा गया है. ठीक है, उस दौर को एज ऑफ रीजन भी कहा गया, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के नाम से भी उसको जाना जाता है. एंड माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट मेनी स्कॉलर्स एंड थिंकर्स हैव फोकस्ड ऑन द एनलाइटनमेंट पीरियड एंड डिस्कस्ड देयर आइडियोलॉजीज एंड देयर आइडियाज एंड कंट्रीब्यूटेड इन द फिलॉसफी ऑफ द लिबरलिज्म. So J.J. Rousseau, Immanuel Kant, Adam Smith and Jeremy Bentham, they were the scholars who have discussed multiple times on the idea of a liberalism. In the idea of a liberalism, the second another concept which is based on the reason is rationalism. Rationalism believes that the entire world or a universe are formed on the basis of a rational structure. Rational structure means the world is governed on the basis of objective laws. यानी कि जो पूरी की पूरी जो सृष्टि है, ये संरचना है, ये किसी न किसी तार्किक कानूनों, तार्किक नियमों के आधार पर चल रही है. एंड इंडिविजुअल कैन डिस्क्लोज इट. Individual can easily disclose these things on the basis of their knowledge as well as their critical inquiry. और वो लगातार सवालों के जरिए, अपनी बुद्धि के जरिए इस पूरे ब्रह्मांड को समझ सकता है. ये कौन मान के चलते हैं? ये मान के चलते हैं रैशनलिज्म. इसको बोलते हैं तार्किकवाद, रैशनलिज्म. तो ये भी उदारवाद का एक महत्वपूर्ण घटक है. दैट वाज आल्सो अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द लिबरलिज्म आइडियोलॉजीज, और वी कैन से दैट लिबरलिज्म फिलॉसफी. नाउ माय डियर स्टूडेंट, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट. That section we have focused the idea of a justice. इस पार्ट के अंदर हम न्याय को डिस्कस करेंगे, and justice is also a very much important part of the philosophy of a liberalism. In the context of a liberalism, the justice also holds the idea of a distribution of a material rewards and benefits in a society. It means society have a multiple resources, and how will you allocate these resources? आप उनके जो संसाधन है उसका वितरण कैसे करेंगे, उसका वितरण सही व्यक्ति तक पहुंच सके. एवरी इंडिविजुअल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी. दिस इज द कोर मीनिंग ऑफ अ जस्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ सोशल डिस्ट्रीब्यूशन. Every individual get equal opportunity, equal belief, equal wages, equal housing societies, medical care system and all the welfare benefits according to the state or by the state. तो यही मीनिंग होता है जस्टिस का. एंड इट जस्टिस ओनली प्रिवेल इन द अम्ब्रेला ऑफ अ लिबरलिज्म. सो नाउ लेट्स कम ऑन द लास्ट सेक्शन, toleration and diversity, which is very important sections of the philosophy of a liberalism. And the tolerance does not only mean to forbearance. इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल सहन करने की शक्ति उसके भीतर हो तो टॉलरेंस हो जाएगा. टॉलरेंस आल्सो द आइडिया ऑफ acceptability. It means that you are against of the opinion, but however you have provided the space for where the individual can propose their idea. In that sense, we assume that the toleration is also not only to forbearance, but it is also provide a particular space or acceptability of others or differences of opinion. इसी संदर्भ में वोल्टेयर, फ्रेंच राइटर हैं वोल्टेयर, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है इसी दौर में. एंड ही सेज दैट आई डिटेस्ट व्हाट यू से बट विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट. मैं विरोध करता हूं आप जो कह रहे हैं, लेकिन इसकी मैं रक्षा करूंगा. यही मीनिंग है टॉलरेंस और डाइवर्सिटी का. सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर द लिसनिंग ऑफ दिस सीरीज एंड प्लीज सस्टेन आवरसेल्व्स, सस्टेन विद अस. और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सर्कुलेट इन देयर विद देयर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग.